لیسکو نے شہر کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے عارضی طور پر مستثنا قرار دے دیا ہے۔ ڈیمانڈ سے زیادہ سپلائی ہونے کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ختم کی گئی ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی شہر میں بجلی کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے نیشنل پاور کنٹرول سینٹر نے لیسکو کو اضافی بجلی فراہم کر رکھی ہے۔ لیسکو چیف مجاہد پرویز چٹھا نے کہا ہے کہ شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، تاہم تکنیکی خرابی اور ضروری ترقیاتی کاموں کی وجہ سے بجلی بند کرنے کو لوڈ شیڈنگ نہیں کہا جا سکتا۔ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے جب کہیں کوئی ٹرانسفارمر جل گیا، اس کو لیے سیفٹی پرمٹ لے لیا، ٹرانسفارمر بدل رہے ہیں، یا کوئی کہیں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام بہت ہی جو ضروری ہو ہم کر رہے ہیں، اس پہ جب ہم فیڈر بند کرتے ہیں تو اس سے تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ شاید لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لیکن میں کیٹیگوریکلی اس کو کلیئر کرتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ کسی قسم کی نہیں ہے۔ کمپنی اس وقت کیٹیگری 3 اور 4 میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے۔ 30 اور 40% تک لائن لاسز والے علاقے مذکورہ کیٹیگریز میں شامل ہیں۔ لیسکو چیف کہتے ہیں کہ کمرشل اور صنعتی صارفین کی کم طلب کی وجہ سے اضافی بجلی موجود ہے۔ ہم کنٹینیوس، میں جی ایم آپریشن، چیف آپریشن، اب باہر بھی نکل رہے ہیں، ہم خود گریڈز پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ اس گریڈ پہ صبح سے کوئی ٹرپنگ آئی ہے، کوئی پرمٹ تو انسیسری نہیں لیا گیا، اس سے بھی چیزیں اور مزید ٹھیک ہو رہی ہیں۔ اس وقت کمپنی کی ڈیمانڈ 4200 جبکہ فراہمی 4350 میگا واٹ ہے۔ لیسکو اس وقت 3900 میگا واٹ پر سسٹم کو چلا رہی ہے۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے آٹے کی قیمت میں کمی فلور ملز کو گندم کے سرکاری کوٹے کے اجراء سے مشروط کرتی ہے۔ حسن علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات لیں گے۔ حسن علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ رواں ہفتے کے اندر جو سرکاری گندم کا کوٹا ہے وہ فلور ملز کو فراہم کر دیا جائے گا، جس کے بعد آٹے کی قیمت میں کسی حد تک استحکام جو ہے وہ آئے گا۔ اسی وجہ سے مزید بات کریں گے، یہاں پہ میرے ساتھ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب زون کے چیئرمین عبدالرؤف مختار صاحب جو ہے موجود ہے۔ جی رؤف بھائی، یہ بتائیے گا کہ امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ گندم کا اجرا جو ہے سرکاری کوٹا فلور ملز کو شروع ہو جائے گا، کیا صورتحال بنے گی اس کے بعد؟ جی دیکھیں، انشاءاللہ بہت جلد کوٹا ایشو ہو جائے گا۔ اس پہ دیکھیں گورنمنٹ اینڈ پہ ہے، گورنمنٹ جو ریٹ ہمیں ویٹ دے گی اس کے مطابق آٹے کا ریٹ بن جائے گا۔ اب بھی جو صورتحال ہے وہ گندم کے ریٹ بڑھنے ہیں، کیونکہ اس دفعہ گورنمنٹ نے فلار مل کو ویٹ اسٹاک کرنے نہیں دی تھی۔ اب جو ویٹ ہے وہ پرائیویٹ لوگوں کے پاس ہے اور وہ اپنی مرضی سے نکال رہے ہیں، اور جب ریٹ تھوڑا کم ہوتا ہے تو پھر وہ روک لیتے ہیں، ویٹ کی سپلائی رک جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ اب اس لیے یہ جو گندم کا ریٹ ہے اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے۔ ابھی سب سے بڑا اسٹاکس حکومت پاکستان ہے، جس کے پاس تاریخ کا سب سے بڑا اسٹاک ہے۔ اب یہ گورنمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنا اسٹاک اگر مارکیٹ میں دے گا، فلار مل کو دے گا، تو اس کے ساتھ ہی آٹے کا ریٹ جو ہے وہ اس میں استحکام بھی آ جائے گا اور کم بھی ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ جیسے کہ میرے ساتھ عبدالرؤف مختار صاحب جو موجود تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی حکومت جو ہے وہ سرکاری گندم کا اجرا فلور ملز کو شروع کرے گی، ویسے ہی آٹے کی قیمت جو ہے اس میں استحکام آ جائے گا، کیونکہ فلور ملز جو بھی قیمت حکومت مقرر کرے گی اس کے اوپر 100 روپے اپنے گرائنڈنگ چارجز رکھ کے تو آٹے کی جو قیمت ہے اس کو مقرر کر دیا جائے گا، اور امید ہے کہ رواں ہفتے کے اندر جو آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمت ہے اس میں استحکام آ جائے گا۔ ٹھیک ہے حسن، بہت شکریہ آپ کا۔ وفاقی حکومت کے نوٹسز اور جرمانے سب بیکار گئے۔ پرائیویٹ آئل مارکیٹنگ کمپنیز شہر لاہور کو طلب کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شہر کے پیٹرول پمپس پر پیٹرولیم مصنوعات کی قلت برقرار ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں وفاقی حکومت کے نوٹسز جرمانوں کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں۔ شہر کے پیٹرول پمپس پر تاحال پیٹرولیم مصنوعات کی قلت دور نہیں ہو سکی۔ شہر میں ٹوٹل کمپنی کے متعدد پیٹرول پمپس بند اور شیل اور دیگر کمپنیوں کے پیٹرول پمپس پر پیٹرولیم مصنوعات کی قلت برقرار ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں 20-20 ہزار کی طلب والے پیٹرول پمپس کو صرف 5 سے 8 ہزار لیٹر روزانہ تیل دے رہی ہیں۔ حکومت پیٹرول نہیں پورا کر دی، ہم کہاں جائیں؟ پورا لاہور پھرنا ہوتا ہم نے۔ پرائیویٹ کمپنیاں تو ایک طرف، پی ایس او پمپس پر بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قلت برقرار ہے۔ جیل روڈ پر واقع پی ایس او پمپ پر 3 ہفتوں سے صرف ہائی آکٹین بیچا جا رہا ہے اور پی ایس او تاجپورہ پر نو سپلائی کا بورڈ آویزاں ہے۔ شہریوں نے بحران ختم نہ ہونے پر وفاقی حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ میں صبح سے نکلا ہوں، مجھے کہیں سے پیٹرول نہیں ملا اپنے گھر سے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ یہ اس پیٹرول پمپ پہ پہنچا ہوں، یہاں پر بھی نہیں ملا، اور بہت ضروری میں نے سروس ہاسپٹل آنا تھا ایمرجنسی۔
पेट्रोलियम डीलर्स और शहरियों ने कहा कि 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद शहर से पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान खत्म नहीं हो सका। वफाकी हुकूमत ने साबित किया कि माफिया उससे ज्यादा तगड़ा है। कैमरा टीम के हमरा शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहर में मुनाफाखोर माफिया की सरगर्मियां उरूज पर हैं। किसी भी इलाके में सब्जियां, फल और मुर्गी का गोश्त सरकारी निर्खनामे पर फरोख्त नहीं हो सका। जिले इंतजामिया, मार्केट कमेटी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने शहरियों को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी ना आ सकी, जबकि मुर्गी का गोश्त 5 रुपए फी किलो सस्ता होने के बावजूद शहर के बेशतर इलाकों में सरकार के मुकर्रर करदा निर्खनामे पर फरोख्त ना हो सका। शहरियों का कहना है कि हुकूमत से ना तो महंगाई कंट्रोल हो रही है और ना ही मुनाफाखोर। उनका कहना था कि हुकूमत अगर महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती तो कम अज कम अपने जारी करदा सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाए, ताकि शहरियों की मुनाफाखोरों से जान छूट सके। इनको चेक करना चाहिए कि रेट किस तरह ये दे रहे हैं। बिल्कुल इसके ऊपर सख्ती होनी चाहिए ताकि गरीब आदमी जो है वो बेचारा अपना पेट पाल सके। दुकानदारों का कहना है कि अगर हुकूमत ने सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाना है तो सबसे पहले मंडियों में सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाना होगा। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। पंजाब हुकूमत शोबा तालीम में इस्लाहात के लिए मजीद कर्ज लेगी। शोबा तालीम के लिए नए माली साल में 12 अरब 40 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। नए माली साल के बजट में गैर मुल्की डोनर एजेंसी से कर्ज लेने की तजवीज़ शामिल है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पंजाब हुकूमत शोबा तालीम में इस्लाहात के लिए मजीद कर्ज लेगी। शोबा तालीम के लिए नए माली साल में 12 अरब 40 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा, जबकि नए माली साल के बजट में गैर मुल्की डोनर एजेंसी से कर्ज लेने की तजवीज़ शामिल है। पंजाब हुकूमत शोबा तालीम में इस्लाहात के लिए मजीद कर्ज लेगी और शोबा तालीम के लिए नए माली साल में 12 अरब 40 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। नए माली साल के बजट में गैर मुल्की डोनर एजेंसी से कर्ज लेने की तजवीज़ भी शामिल की गई है। बल्दिया मुस्तहकम पंजाब मुस्तहकम पॉलिसी के तहत बिल्डिंग बाय लॉज 2020 मुरतब करने का फैसला किया गया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने हाई राइज बिल्डिंग, रिहायशी, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स प्लान्स की स्क्रूटनी में जिद्दत के लिए तजावीज़ की तैयारी शुरू कर दी है। हाई राइज बिल्डिंग की ज़्यादा से ज़्यादा 300 फीट ऊंचाई की तजवीज़ दी गई है। जो मेन फ़ायदा होगा वो ये है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है कि हम हाई राइज बिल्डिंग को प्रमोट करें ताकि हम अपने जो शहर हैं उनके गिर्द एग्रीकल्चर एरिया को और ग्रीन एरिया को सेव कर सकें। इसमें लाहौर में चूँकि पहले से ट्रेंड ऐसा नहीं था, लेकिन अभी हम इसमें एक प्रोविज़न ऐड कर रहे हैं जिसके तहत अपार्टमेंट बिल्डिंग्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स की हाइट को जो है मैक्सिमम हद तक, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो और वहाँ पे इस तरह की जो है ना गुंजाइश मौजूद हो, तो उसको हम ना 300 फुट और 300 फुट के ऊपर भी ले जाना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने MS-10 के अफसरान की ज्वाइनिंग और फील्ड तैनाती की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। मजीद तफसीलात लेंगे कैसर खोकर से। कैसर खोकर, बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद बुज़दार ने PMS-10 के अफसरान की ज्वाइनिंग की समरी मंजूर कर दी है, जिसके मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब शौकत अली को हुक्म दिया गया है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन से जो सिलेक्ट होकर PMS-10 के अफसरान आए हैं उनकी फौरी तौर पर ज्वाइनिंग कराई जाए। उनमें से 50% अफसरान को सेक्रेटेरिएट में बतौर सेक्शन अफसर उनकी अटैचमेंट कर दी जाए, जबकि 50% अफसरान को फील्ड में बतौर AC-UT जो है लगा दिया जाए, उनकी अटैचमेंट कर दी जाए। और इस हवाले से जब तक कोरोना की वजह से ट्रेनिंग शुरू नहीं होती, उनकी फील्ड और सेक्रेटेरिएट हेडक्वार्टर अटैचमेंट का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाए और उनकी ज्वाइनिंग भी ले ली जाए। ठीक है कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। बगैर अपॉइंटमेंट आम आदमी के लिए एक्साइज दफ्तर के दरवाजे बंद, लेकिन एजेंट माफिया ने एक्साइज हुकाम को मीठी गोलियां देकर बगैर ऑनलाइन बुकिंग गाड़ियां रजिस्टर करवाना शुरू कर दिया। बगैर अपॉइंटमेंट रोजाना दर्जनों रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर और टैक्सेस की अदायगी के इजाफी चालान निकालने वाले 6 अफसरान और अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। कहते हैं घर का भेदी ही लंका ढाता है, ऐसा ही कुछ हुआ एक्साइज के नए सिस्टम के साथ, क्योंकि अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को एक्साइज हुकाम खुद ही नाकाम बनाने लगे हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए चंद रोज कबल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाया गया था ताकि दफातर में रश न हो और शहरी ऑनलाइन बुकिंग के जरिए दफ्तर आकर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर और टोकन टैक्स अदा कर सकते थे। लेकिन एक्साइज अमले की मिली भगत से गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड होने लगी हैं, जबकि एजेंट माफिया की गाड़ियों की फाइलें अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बगैर रजिस्टर्ड हो रही हैं।
डायरेक्टर एक्साइज रीजेंसी राना कमरुल हसन ने सिस्टम चेक करते हुए इजाफी चालान निकालने पर 6 अफसरान एहलकार, जिसमें आदिल सलीम, डेटा प्रोसेसिंग ऑफिसर, मोटर क्लर्क मोहम्मद शुक्रान, मोहम्मद एहसन खान, इश्तियाक अहमद, निसारुल मुस्तफ़ा, जूनियर क्लर्क को मुअत्तल करके डायरेक्टोरेट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। सिस्टम में चेकिंग के दौरान ये बात सामने आई थी कि रोजाना की बुनियाद पर अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बुकिंग के अलावा भी 50 से 60 इजाफी चालान निकाले जा रहे थे। डायरेक्टर रीजेंसी राना कमरुल हसन का कहना है कि अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बगैर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होगी। मुअत्तल होने वाले मुलाजमीन इजाफी चालान से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां रजिस्टर्ड करवाते थे और पासवर्ड का गलत इस्तेमाल करते थे। एक्साइज के लिए आम आवाम सबसे अहम है, बगैर अपॉइंटमेंट के आने वाले शहरी की गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होगी। स्पोर्ट्स बोर्ड के अफसरान और कोचेस की पहली तरबियती वर्कशॉप कल शुरू होगी। 24 और 25 जून तक मुनक्किदा होने वाली वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया पर होगी। वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा वसीम, स्पोर्ट्स बोर्ड किन किन मौज़ूआत पर वर्कशॉप मुनक्किद करा रहा है? जी, महकमा स्पोर्ट्स बोर्ड ने अपने तमाम जितने भी अफसरान और कोचेज़ हैं जो कि नई भर्ती होने वाले हैं, उनकी तरबियत के लिए अच्छे जो है तरबियती वर्कशॉप्स का शेड्यूल जारी किया था, जिसकी पहली वर्कशॉप जो है वो कल मुनक्किद की जाएगी, जिसमें जो है टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर इनके लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। जबकि जो दूसरी वर्कशॉप है इसी सिलसिले की, जिसमें डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट्स की जो मॉनिटरिंग है उसके हवाले से ये वर्कशॉप मुनक्किद की जाएगी, जो कि जून में ही 30 जून को मुनक्किद की जाएगी। इसमें तीसरी वर्कशॉप जो है जिसमें स्पोर्ट्स मनसूबों और SNE और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तरबियत दी जाएगी, वो 8 और 9 जुलाई को मुनक्किद की जाएगी। जबकि इसी सिलसिले की चौथी वर्कशॉप जो है वो 22 और 23 जुलाई को पेपरा रूल्स और लीगल इश्यूज़ के मुतालिक जो है वो मुनक्किद की जाएगी। जबकि पाँचवीं वर्कशॉप जो है वो 5 और 6 अगस्त को मुनक्किद की जाएगी, जिसमें कोचेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंजरीज़ के जो इशू हैं उन पर कोचेस को और तमाम अफसरान को तरबियत दी जाएगी। जबकि इस सिलसिले की जो आखिरी जो वर्कशॉप है वो जो है अगस्त में ही मुनक्किद की जाएगी, जिसमें स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से तमाम नए भर्ती होने वाले जितने भी अफसरान हैं और तहसील ऑफिसर और इसके साथ साथ सूबाई कोचेज़ हैं उनको दी जाएगी, जो कि स्पोर्ट्स के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन और दीगर मनसूबों के हवाले से होगी। जी वसीम अहमद, बहुत शुक्रिया। CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक का सेक्रेटरी पालवा कैप्टन नारेजो को खत। कोरोना के बायस एयरलाइन को दरपेश मसाल में पायलट्स कम्युनिटी को साथ मिलकर मुकाबले करने का पैगाम दिया गया। CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक की जानिब से सेक्रेटरी पालवा के नाम लिखे गए खत के मतन के मुताबिक कोरोना के बायस पूरी दुनिया में एयरलाइन इंडस्ट्री मुश्किल हालत में है और कई जगह एयरलाइन इंडस्ट्री दिवालिया हो चुकी है। मौजूदा हालात में कौमी एयरलाइन महंगी तरीन होती जा रही है। इस हवाले से हम सब की पहली तरजीह कौमी एयरलाइन का तहफ़्फ़ुज़ और बका है। कोरोना के बायस कौमी एयरलाइन सिर्फ 10% ऑपरेशन चला रही है। कौमी एयरलाइन के पायलट हमारी मेरास और कीमती असासा हैं। फ़्लाइट A3 और 3 के हादसे के बाद मुसाफिरों का एतमाद बरकरार रखने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान रांझा का डेंगू सर्विलेंस का जायजा लेने के लिए UC 95 का दौरा। 2 घरों से डेंगू लार्वा बरामद होने पर फौरी तल्फ कर दिया गया। शहर में डेंगू लार्वा की तस्दीक का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान रांझा ने डेंगू सर्विलेंस का जायजा लेने के लिए UC 95 का दौरा किया। इंडोर और आउटडोर सर्विलेंस का जायजा भी लिया। रूफ टॉप्स और डोर मार्किंग की भी तफसीली चेकिंग की गई है। दौरान सर्विलेंस 2 घरों से डेंगू लार्वा की तस्दीक हुई है, जिस पर लार्वा को फौरी तौर पर तल्फ करवा दिया गया। AC मॉडल टाउन ज़िशान रांझा ने कहा कि जहां से डेंगू लार्वा बरामद हुआ है उसकी तलफी और डेंगू स्प्रे को यकीनी बनाया जा रहा है। शहरियों से अपील की है कि घरों में किसी भी जगह पानी खड़ा न होने दें। वासा ने गवर्नमेंट डिफॉल्टर्स, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज और कमर्शियल नादहिंदगान से एक्वाफायर और सेवर चार्जेस की मद में रवा माह का रिकॉर्ड वसूल कर लिया है। MD वासा सैयद जाहिद अजीज की जानिब से वासा रेवेन्यू डायरेक्टोरेट अमले की तारीफ और कोरोना से बचाव के SOPs के अमल दरामद को यकीनी बनाए जाने की हिदायत जारी की हैं। इस मौके पर डायरेक्टर रेवेन्यू मियां मुनीर और डेप्यूटी डायरेक्टर अल्लामा इकबाल टाउन फ़खर भट्टू भी मौजूद थे। वासा हुकाम के मुताबिक रवा माह नादहिंदगान से एक्वाफायर और सीवरेज की मद में 2 करोड़ से ज़ायद की रिकवरी की। एक्वाफायर और सीवरेज चार्जेस की मद में वेलेंशिया टाउन से 17 लाख, पंजाब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ सोसाइटी से 14,23,000 रुपए लिए गए हैं।
रेस कोर्स में खातून पर शौहर और देवर का तशद्दुद, सर के बाल भी काट दिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके शौहर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रेस कोर्स के इलाके गड़ी शाहू में साइमा नामी खातून पर उसके शौहर और देवर ने और 2 नामालूम अफराद के हमरा तशद्दुद किया, जिसके बायस खातून की कमर और सर पर चोटें आईं। मुल्जिमान ने तशद्दुद का निशाना बनाते हुए खातून के सर के बाल भी काट दिए। वाक़े की इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शौहर शबीर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि देवर हबीब और दीगर मुल्जिमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। एसपी सिविल लाइंस दोस्त मोहम्मद खोसा ने कहा है कि वाक़या घरेलू झगड़े के बायस पेश आया और वारदात का मुकदमा दर्ज करके दीगर मुल्जिमान की तलाश की जा रही है। और बड़े इश्तिहारियों की गिरफ्तारी लाहौर पुलिस के लिए चैलेंज बन चुका है। रवां साल लाहौर पुलिस बड़े इश्तिहारियों में से सिर्फ 1% को गिरफ्तार कर सकी है। आईजी पंजाब ने नाकिस कारकर्दगी पर सीसीपीओ लाहौर से इजहार नाराजगी करके कारकर्दगी बेहतर बनाने का हुक्म दिया है। लाहौर पुलिस सोशल मीडिया पर बहुत मुतहरिक नजर आती है, लेकिन अगर कारकर्दगी का जायजा आदादो शुमार से लिया जाए तो अपने फराइज में सबसे अहम तरीन फर्ज शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में बुरी तरह से नाकाम है। पिछले सालों के बड़े केसेस में इश्तिहारी लाहौर पुलिस की पहुंच से दूर हैं, जिनको पकड़ने की बजाय फायदों का हिस्सा बनाकर गिरफ्तार करना भूल गई है। आईजी पंजाब को पेश करदा आदादो शुमार के मुताबिक लाहौर पुलिस पुराने इश्तिहारियों में से सिर्फ 1% मुल्जिमान को गिरफ्तार कर सकी है, जबकि 5000 से ज्यादा ए कैटेगरी के इश्तिहारी मौजूद हैं। आईजी पंजाब ने नाकिस कारकर्दगी और इश्तिहारियों की गिरफ्तारी पर सीसीपीओ जुल्फिकार हमीद से इजहार नाराजगी करके कारकर्दगी बेहतर बनाने का हुक्म दे दिया है। आईजी पंजाब ने कहा है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस मदद के लिए तैयार करदा होटल आई समेत दीगर एप्स सेफ सिटी के फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम को बरोकार लाते हुए पुराने इश्तिहारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। और अब बात शहर के मौसम के हवाले से। लाहौर का मौसम गर्म, आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश की पेशगोई की गई है। गुज़श्ता बरस की निस्बत रवा बरस जून में बारिशें निस्बतन कम हुई। माहिरीन के मुताबिक रवा बरस गर्मी की शिद्दत भी कम होगी। लाहौर में गर्मी का जोर बरकरार, आज पारा 40 तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई कर दी। मौसम का हवाल बताने वालों का कहना है कि रवां बरस जून के महीने में बारिशें कम हुई हैं, जबकि गुज़श्ता साल जून में पारा ज्यादा था। आइंदा हफ्ते लाहौर में दर्जा हरारत 45 तक जाएगा, जबकि लाहौर में भी प्री मानसून की नवीद सुनाते हुए कहा है कि बारिशों से गर्मी की शिद्दत में भी नुमाया कमी होगी। मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में आज रात से दाखिल होगा, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान के मौसम में बेहतरी आएगी। इसमें तेज़ हवा भी होगी। कुछ हमारे गिलगित बल्तिस्तान के इलाके, कश्मीर के इलाके, शुमाली पंजाब है, इसमें गुजरात डिवीजन ख़ास तौर पर सियालकोट का इलाका है, गुजराला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, और फिर इसमें लाहौर का भी कुछ हिस्सा जो है वो लाहौर में भी जो है वो तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है। शुमाली मगरबी हवाएं नमी के साथ पंजाब का रुख करेंगी, जो बारिश बरसाएंगी, जबकि दिन के औकात में नमी ज्यादा होने की वजह से हब्स में इजाफा होगा। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड, चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान की वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। 7 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं। वसीम खान की जानिब से ये बताया गया है। काशिफ भट्टी, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज का टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हुसनैन, इमरान खान सीनियर का टेस्ट भी पॉजिटिव आया है और ओपनर फखर जमान का टेस्ट भी मुस्बत आ चुका है। मजमूई तौर पर 10 खिलाड़ियों और एक टीम इंतजामिया का टेस्ट पॉजिटिव आया है, जबकि यह भी बताया जा रहा है कि ज़्यादातर वाइट बॉल प्लेयर्स खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। 27 जून को दौरा इंग्लैंड के लिए टीम का ऐलान किया जाएगा। वसीम खान की जानिब से यह बताया जा रहा है। कौमी क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड के हवाले से आपको अपडेट करते चलें तो चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान की वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने बताया है कि 7 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ चुके हैं और काशिफ भट्टी, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज का टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हुसनैन, इमरान खान सीनियर भी उनमें शामिल हैं जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जबकि इनके साथ साथ ओपनर फखर जमान का टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। मजमूई तौर पर 10 खिलाड़ियों और एक टीम इंतजामिया का टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। ज्यादातर वाइट बॉल प्लेयर खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। 27 जून को दौरा इंग्लैंड के लिए टीम का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। वसीम खान का ऐसा बताना है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीजों का प्लाज्मा फरोख्त करने के केस में रिमार्क्स दिए हैं कि कहा जा रहा है कोरोना मरीज सरकारी हॉस्पिटल जाएं तो जान नहीं बचती, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में माल नहीं बचता। हुकूमत को चाहिए था कि कोरोना के इलाज के रेट मुख्तस करती।
अदालती हुक्म पर सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबील अवान, चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ केयर कमीशन पंजाब और ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के मुतल्लिका अफसरान पेश हुए। अदालती इस इफ्सार पर सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने इतराफ किया कि कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीजों के प्लाज्मे फरोख्त हो रहे हैं, जबकि अभी तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर फाल नहीं। देखिए, प्लाज्मा के बारे में पहली बात तो ये है कि ये एक इन्वेस्टिगेटिव ट्रायल है जो प्लाज्मा का हो रहा है। पूरी दुनिया में बहुत सारे सेंटर्स में हो रहा है और अभी तक किसी भी एक भी जगह से इसके कोई एस्टेब्लिश्ड पॉजिटिव रिजल्ट सामने नहीं आए हैं। तो ये ट्रायल अभी है, अभी इसके जब भी नताइज निकलेंगे फिर कोई फैसला होगा। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने दुराने समात इजहार बरहमी करते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए था कि कोरोना के इलाज के रेट मुख्तस करती, लेकिन इस वक्त अस्पतालों में कोरोना इलाज के लिए मुंह मांगी रकम वसूल की जा रही है। चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ केयर कमीशन ने अदालत को बताया कि कोरोना के इलाज के रेट मुख्तस कर दिए हैं। अब हमने पिछले को 10-15 दिन से एक्शन लेना शुरू किया है। इस वक्त हम तकरीबन 60 हॉस्पिटल हैं पूरे पंजाब के जो कोरोना के मरीज़ों को ट्रीट कर रहे हैं, जिसमें से 50 का विज़िट कर चुके हैं। 50 में से 46 वापस अपने फरवरी वाले रेट पे चले गए। हाई कोर्ट ने प्लाज्मा की फरोख्त पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी को मुकम्मल रिपोर्ट 8 जुलाई को पेश करने का हुक्म देते हुए कहा, हुकूमत यकीनी बनाए कि प्लाज्मा फरोख्त नहीं बल्कि अतिया किया जाएगा। अदालत ने आइंदा समात पर सेक्रेटरी दाखिला को भी पेश होने का हुक्म देते हुए समात मुलतवी कर दी। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा मलक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने भी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ तरमीमी एक्ट की मुखालिफत कर दी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ एहतजाज में शामिल होने का ऐलान किया है। अकमल सोमरो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अकमल सोमरो, बताएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी, हुकूमत पंजाब ने ये फ़ैसला किया कि तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के एक्ट में तरमीम की जाएँ और सिंडिकेट का चेयरमैन जो है वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और रिटायर्ड जज को तैनात किया जाए और इस हवाले से बाकायदा तौर पर मुसवदा भी तैयार किया गया है जो पंजाब असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। अब मुल्क भर की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की एसोसिएशन बनी हुई है, इन एसोसिएशन ने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के साथ खड़ा होने का ऐलान कर दिया है और इस नए तरमीमी एक्ट की मुखालफत कर दी है। इस हवाले से इस एसोसिएशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान किया गया है कि हुकूमत हायर एजुकेशन को मुतासिर करने की कोशिश कर रही है और अगर यूनिवर्सिटियों की खुद मुख्तारी को ख़त्म किया गया और इस तरमीम के ज़रिए से यूनिवर्सिटीज़ की खुद मुख्तारी में हुकूमत ने मुदाखलत की तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के शाना बशाना खड़ा होकर एहतजाज करेंगी। इस हवाले से ये भी कहा गया है कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और जो पब्लिक सेक्टर से वाबस्ता अफराद हैं, इनसे हुकूमत ने ये मुसवदा तैयार करने के लिए किसी किस्म की मुशावरत नहीं की और महज ब्यूरोक्रेसी की माँ पर ये एक्ट जो है इसको तैयार किया गया है जिसकी वो सख्त मजम्मत करते हैं और मुखालफत करते हैं और ज़रूरत पेश आई तो वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा और तलबा के साथ खड़े होकर एहतजाज भी करेंगे। बहुत शुक्रिया अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। मरीजों की सहूलत के लिए किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला। टेली मेडिसिन की सहूलत 24 घंटे फाल रखने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। हुकूमती हिदायत के मुताबिक किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने शोबा टेली मेडिसिन को हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे जारी रखने के अहकाम जारी कर दिए हैं। रोस्टर के मुताबिक पहले 5 दिन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, जबकि हफ्ते बाद दोपहर और इतवार फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के तिबी माहिरीन टेली मेडिसिन में खिदमत सर अंजाम देंगे। हुकूमत का महकमा जेल के साथ सौतेली माह वाला सलूक। महकमा जेल को इजाफी बजट में फंड्स जारी न होने से अमूर बुरी तरह मुतासिर हैं। महकमा जेल ने रवा माली साल हुकूमत से 9 करोड़ 60 लाख की इजाफी रकम मांगी। इजाफी फंड्स कैदियों के खाने, दफ्तरी अमूर और दीगर अखराजात की मद में मांगे गए हैं। इजाफे बजट में फंड्स जारी न किए गए। नए माली साल में भी 51 करोड़ का कट लगाया गया है। इजाफी फंड्स की अदम फराहमी से तमाम अमूर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। जेल ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि इजाफी बजट न मिलने पर कैदियों के खाने के फंड्स अदायगी भी मुतासिर हो रही है। ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है। हुकूमत ने महकमा जेल के साथ सौतेली माह वाला सलूक बरता है। महकमा जेल को इजाफी बजट में फंड्स जारी न होने से अमूर बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। महकमा जेल ने रवा माली साल हुकूमत से 9 करोड़ 60 लाख की इजाफी रकम मांगी। इजाफी फंड्स कैदियों के खाने, दफ्तरी अमूर और दीगर अखराजात की मद में मांगे गए।
सरकारी महकमों फैक्ट्रीज से रिटायर्ड मुलाजमीन की EOBI पेंशन में इजाफा लॉलीपॉप साबित हुआ। विफाकी बजट भी इस मामले को हल नहीं कर सका है। EOBI पेंशन्स में इजाफे का मामला हल ना हुआ। रिटायर्ड मुलाजमीन की आस उम्मीद पर पानी फिर गया। हुकूमत रवा बरस पेंशन की रकम 8,500 तक बढ़ाकर यू टर्न ले चुकी है। 6 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वर्कर्स इस वक्त सिर्फ 6,500 रुपए माहाना पेंशन लेने पर मजबूर हैं, जो महकमे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ज़राए के मुताबिक सिर्फ 20% रिटायर्ड मुलाजमीन रजिस्टर्ड हो सके हैं। वर्कर्स की तादाद 30 लाख से जायद होने के बावजूद महकमे ने सिर्फ 6 लाख रजिस्टर्ड किए। EOBI पेंशनर्स कोरोना की वजह से दफातर की बंदिश पर मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं और हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि उनके मसाइल जल्द अज जल्द हल किए जाएं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।